and a very warm welcome to a fresh edition of Times Now's Election Yatra. I'm Pratibha Chandran and thank you for joining us. Today we are in the constituency of Chief Minister Atishi Kalkaji. What are the key issues here? How impactful are the guarantees in this constituency? What are the key factors that work in favor of the Aam Aadmi Party and what could go against them? The BJP and the Congress factor as well. We're going to be talking about that as we speak to the candidates. Against Atishi is Alka Lamba as well as Ramesh Biduri. We're going to be speaking to them as well to find out what's the mood on the ground. Come with us. As Aam Aadmi Party hopes to stay in power for a third straight term, Arvind Kejriwal would certainly want his party's biggest leaders leading the charge. One of the big clashes in the battle for Delhi is here in Kalkaji, where all the three sides, the Aam Aadmi Party, the BJP and Congress, have fielded some of their strongest faces. For the Aam Aadmi Party, the Delhi Chief Minister Atishi is looking to secure a second straight term as MLA from here. The BJP has fielded former MP and RSS strongman Ramesh Biduri, while the Congress has fielded the All India Mahila Morcha chief Alka Lamba. The constituency has attracted a lot of attention lately for the highly acerbic poll battle, with the BJP candidate's comments against Atishi even reducing her to tears. इनको मालूम है कि जब भी कोई ऐसी हरकत होती है, इनको मालूम है हमने कुछ गलत किया है, तो एक विक्टिम कार्ड ये लोग खेलते हैं। मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से घड़ियालू आंसू बहा रही हैं। मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अपने पिताजी के वो जो अफजल गुरु के प्रति उन्होंने याचिका दायर की है, उस पर वो निंदा उनकी करती है, समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे, जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। मैं याद करा दूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, 3 महीने पहले, एक बार पहले भी आपने मुझसे मुख्यमंत्री आवास छीना था, मेरा सामान सड़क पर लाके फेंक दिया था। All sides are pulling the stops in this battle of the heavyweights. But who will win the hearts of the Aam Aadmi? We decided to hit the ground and see what the mood is like in the Chief Minister's constituency. So we're in the Kalkaji constituency in Delhi. This is the constituency of the Chief Minister Atishi. She was voted to power from this constituency in 2020 with over 10,000 votes. Now she became the Chief Minister after Kejriwal was embroiled in the entire Liquorgate controversy. He was jailed, after which he took over as the Chief Minister. For the people of the constituency, what matters the most? First impressions as we walk into this constituency, as we drive around, this is what we are seeing. Garbage that's strewn around. We just crossed a bus stop as well, where there were a lot of cows that were seated there. So, that would be very inconvenient to the people. You can see here as well, stray cows, people waiting in the bus stop, but there's garbage strewn around right in front of them, and that's what it looks like here. This is one of the areas in Kalkaji. We will be going around across the constituency, looking at every place. But what are the issues that matter to the people? Is it these issues of cleanliness, of not having enough development here? Or is it more basic of the basic needs for them? We're going to speak to the people and find out, because the Aam Aadmi Party's biggest support has been the fact that it has brought about schemes. I can see posters here as well. Mahilao ke liye 2100, which is 2,100 rupees for women. That has also been one of the biggest factors. Look at this, cows and a lot of garbage pile, a huge pile of garbage that's seen here as well. So as far as the cleanliness is concerned, in this area at least, I can see that there is a lot to be desired, a lot that can be done for the people. Is this one of the key issues, or is it more? We're going to be finding out as we go across the Kalkaji constituency and speak to the people. It's a bustling part of the capital, and one that's set to witness a high-octane clash.
In 2020, Atishi secured over half the votes and the BJP came a close second with a nearly 42% vote share. But is that set to change this time around? We're in Navjeevan camp of the Kalkaji constituency. This is a VIP constituency because the Chief Minister of Delhi, Atishi, is representing this constituency. And this time around as well, from the Aam Aadmi Party, she has been fielded. We'll talk to the people and find out from them what are the key issues. Are they happy with the development they see here? Are they happy with the schemes or not? आंटी, आप यहाँ पे रहती हैं, यहाँ पे कालकाजी में क्या क्या समस्याएं हैं? कैसा अभी दिल्ली इलेक्शन जो चल रहा है, आपको क्या लगता है? जो समस्या थी वो हमारे आदिशी ने खत्म कर दी थी। पानी को 2-2 3-3 दिन हो जाते थे, बैठे रहते थे धूम में, पानी नहीं आता था। शौचालय में 1 रुपया होता है तो शौचालय में टट्टी करन देते थे, लेकिन लैट्रिन नहीं करन देते थे। आ गई हमारी गाड़ी जल बोर्ड की, देखिए पानी के लिए अब ऐसा आदिशी ने पानी का इतना कर रखा, शौचालय में कोई पैसा नहीं, टंकर पे कोई पैसा नहीं, 2-2 3-3 टंकर आते हैं। अच्छा कर रखा, हमें क्या चाहिए? बिजली अच्छी कर रखी, हम और कुछ नहीं चाहिए बेटा। अच्छा, सब कुछ खुश है। अभी आपने जो बात की पानी की, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जल बोर्ड का जो vehicle hai, this is the Delhi Jal Board vehicle that's coming in. A lot of people, and this is a persistent problem across Delhi that many have spoken of about the water. तो अभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि दिक्कतें हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे रोड वगैरह ठीक नहीं है, तो साफ नालियाँ खुद ही पड़ी है। ये कर रहा थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन जब आपको अच्छा लगेगा तभी तो होएगा सारा काम। कर रही हैं थोड़े थोड़ा, पर इतनी परेशानी जो हमारी थी वो सारी खत्म हो गई है। क्या क्या परेशानी? पानी का, बिजली, लैट्रिन, शौचालय, सब कुछ हो गया। और बच्चे भी हमारे अच्छे स्कूलों में बैठा रखे हैं। हमें यही स्कूल यहाँ पे अच्छे से बना हुआ है, स्कूल खूब बन रहे हैं, खूब अच्छे। क्या सब स्कूल पहले नीचे बैठते थे बच्चे, अब कुर्सियों पर बैठते हैं बच्चे। हमें यही चाहिए बेटा, और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। तो आप चाहते हैं कि आतिशी सीएम रहे? और क्या, बिल्कुल भाई। हम पार्टी उसी के, हम तो कटट कहते पार्टी उसी के। हम तो भाई, हम तो झाड़ू वाले के रोजी रोटी दे रखी है, हम तो पार्टी उसी के हैं भाई। चाहे कोई बुरा मानो चाहे भला मानो, हम तो पार्टी उसी के हैं भाई। अच्छा, okay. So overwhelming support for the Aam Aadmi Party, saying thank you, saying that they have done a lot. Water, and this is one of the key support bases for the Aam Aadmi Party, the fact that bijli, pani is being taken care of. So water, electricity, like we mentioned, some of the subsidies that have been introduced by the government, time and again, that has been one of the biggest issues that people across Delhi have spoken of. Water, over the last few weeks, there has been a problem because we've been seeing that over the last few days, many have been complaining about dirty water coming in, and they've been speaking about how water facilities are not good enough. आप यहाँ के रेजिडेंट हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या क्या समस्या? अभी जब दिल्ली इलेक्शन आ रही है, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या क्या देखना चाहिए? देखो, एक तो यहाँ की जो कुछ तो ये है कि सड़क नहीं बनी है यहाँ पर, और मीठे पानी की समस्या है, जैसे कि टैंकर आते हैं यहाँ पर और अंदर पानी नहीं है। वैसे पानी बहुत है, और बिजली तो खैर है ही यहाँ पर, कभी भी बिजली जाती नहीं यहाँ से। अच्छा, हाँ, वैसे पॉकेटों में चली जाएगी, यहाँ नहीं जाती। अच्छा, तो बिजली यहाँ पे हमेशा रहती है। और बिजली के बिल का क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जीरो बोलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता है। आपके साथ हुआ है ऐसा? है, मैंने 3300 भरा है अभी। अच्छा, हाँ, तो जीरो नहीं होता? जीरो नहीं, जैसा हम जलाएंगे वो बिल भरना पड़ेगा। वो तो एक कहने की बात है कि 1 महीना फ्री कर दिया और उसके बाद दोबारा बिल आना स्टार्ट हो गया, फिर वो अगले महीने का भी लगना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? कैसे नॉर्मल फैमिली का जीरो है? 200 यूनिट तक का जीरो है, उससे खुश हैं आप? जीरो आ रहा है लगभग काफी टाइम से। अच्छा, काफी टाइम से जीरो आ रहा है। जो कमर्शियल है, दुकानदार है, उसका तो बिल आएगा, क्योंकि यूनिट के हिसाब से पैसे चलते हैं ना। और कमर्शियल में तो सब्सिडी है नहीं, ये भी तो देखा जाता है ना। अब कमर्शियल वाला बोले मुझे जीरो नहीं आ रहा, वो भी गलत है। आम आदमी पार्टी ने ये प्रॉमिस किया है, बीजेपी ने अब कहा है कि कमर्शियल में भी वो एक्सटेंड हो जाएगा। बीजेपी भी कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी ने किया है वो काम हम भी कंटिन्यू करेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी अच्छा काम करी है? नहीं, आम आदमी पार्टी मेरे हिसाब से 99% अच्छा काम कर रही है अभी तक। क्योंकि हमने तो बहुत और देखा है कांग्रेस के जमाने का कि हम 2-2 डिग्गियां लेके पुलिस चौकी तक पानी भरने जाते थे। 2 डिग्गियां लेके पूरा दिन स्कूल ना जाकर के पानी पे डिपेंड रहते। पानी नहीं होगा, काम कैसे होगा? आम आदमी का आने से आज गली गली में इतना पानी है कि नहाने धोने की कोई टेंशन नहीं। और टैंकर की सुविधा पहले से कहीं ज्यादा है। पहले एक आता था टैंकर, अब 4 टैंकर आते हैं, तो चीजें तो बड़ी है ना। ये भी नहीं बोल सकता कि पानी नहीं मिल रहा है, पानी भरपूर मिल रहा है। पहले एक टैंकर आता था और 100 लोग भरने वाले थे, अब 10 टैंकर आ रहे हैं, तो डिवाइड हो गया ना पानी और एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। और ये थोड़ा लोकल एरिया, अभी पानी की पाइपलाइन आने में समय भी लगेगा, चीज़ों को
लेकिन आम आदमी ने अपने मुताबिक, बोलने के मुताबिक 80% तो काम करे। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं किया। कुछ तो कमियां रह जाती है जो केजरीवाल ने मानी भी है कि जो नहीं हुई है वो मैं करूँगा। देखिए, आपने बताया कि बहुत कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं? जैसे कि साफ सफाई के बारे में कुछ लोगों ने वहाँ पे बात की। आपको लगता है कि ये भी मुद्दा है, तो किसी और को चांस दे देना चाहिए, या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अब अगली बार करवा देगी? आम आदमी पार्टी को ही चांस देना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो निगम पार्षद है, कुछ काम तो उसके भी है ना। सारे काम तो हम विधायक पर नहीं थोप सकते। अब हर किसी का अलग अलग काम होता है ना, सारे सिर्फ सीएम के ऊपर या विधायक के ऊपर थोड़ी थोप देंगे। कुछ काम तो निगम के भी है, उसका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, नहीं बनता है? अच्छा, तो कर्तव्य दूसरे पार्टियों का भी बनता है, जो निगम है यहाँ पे उनको भी लगना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है दिल्ली में? आप आम आदमी पार्टी। हाँ, क्यों? मैं रहा हूँ 13 नंबर गली। यहाँ पे मैं देखा ये पानी नहीं आता, हर जगह बोल लगे हुए हैं ट्यूबवेल सब बंद करेंगे, सब बंद है। पानी आता है कभी कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। मेरे घर में आता, हम तो सही हैं, मेरे घर में आप आइए, ठीक है। लेकिन घर में ऐसा कचरा बड़ा होता है, गली गली में कूड़ा। काम किसका? एमसीटी का होता है। कूड़ा मेरे घर में बड़ा होता है, मेरे घर में आप आइए, कूड़ा नहीं फेंक पाते, मैं फेंकता हूँ। इतना हालत खराब है दिल्ली में। ये दिल्ली सरकार मोदी की है, जबकि मोदी सरकार तो मेरे अपने घर को देखे घर में क्या होता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत हैं और भी चीजें करने के लिए। मैडम, हम यहाँ पे रेजिडेंट हैं, यहाँ पे कालका जी में आपको क्या क्या समस्याएं हैं? अभी जो इलेक्शन आ रहा है उसके में आपके लिए क्या मेन मुद्दे रहेंगे? मेरे लिए तो सब कुछ ठीक है यहाँ पे। सब ठीक है? हाँ जी। अच्छा, पानी, बिजली, राशन सब मिल रहा है। सब मिल रहा है? मौजा ही मौजा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कि आम आदमी पार्टी आ गई है तब से आपको राहत मिल रही है? तब से मिल रही है। तब से आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। मेरे केजरीवाल केजरीवाल, उन्होंने बहुत कुछ दिया हमें। Okay, all right. So many say that the schemes that have been introduced by the Aam Aadmi Party have helped us, and they say that the other parties may be promising. So many refuse to even believe the promises of the other parties, going on to say that it's all a lie. We're not going to believe it. We have seen what the Aam Aadmi Party has done for us, and that is all that matters. While the clash in Delhi has largely been seen as a two-horse race, the Congress is looking for a strong comeback this time around. In the previous election, the Congress came a distant third with just 4% of the votes in the Kalkaji constituency, and the party as a whole secured only 4.26% of the votes across capital. But can Alka Lamba lead the Congress's charge as they look to turn around their fortunes? So I'm in the Kalkaji constituency, and this is the Chief Minister's constituency. It's a battle between Alka Lamba of the Congress Party, who's campaigning right behind me. You can see it's a door-to-door campaign that's taking place here. She's appealing to the women in particular while speaking to the people in the constituency. The Chief Minister on the other side, the BJP has fielded Ramesh Biduri. There are questions on whether there will be a change in that or not. We'll have a word with Alka Lamba during her campaign trail. While she's stopping in each of these places, she's talking about, interestingly, the guarantees of the Congress Party. She has said that the guarantees are the most important for the people. You can see her interacting over there. Let me wait for her to come here and let me have a word with her as well. And what is it that she is promising, the word that she is telling the people, and whether she believes that the Congress Party has a chance here. Remember, in the previous election, the Congress Party had been reduced to 0 seats, no seats by the Congress Party. Is it going to be better this time around? How tough a challenge is it going to be here? Let me have a word with her. Alka ji, I know it's very, very busy time for you. We are in the campaign trail with you. How's it going? देख लीजिएगा आप सड़कों की हालत, गलियों की हालत, गंदगी देखिए, लोग परेशान हैं। और मिल रही हूँ, डोर टू डोर जा रही हूँ। कालका जी में हूँ। कालका जी मेरे लिए नया नहीं है। जब 30 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा था, 2-3 कॉलेज, भगत सिंह, देशबंधु, ये सब इधर ही हैं। सो लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। राहुल गांधी जी बता रहे हैं, इनके बीच में आए थे ओखला मंडी कालका जी में, महिलाओं से मिले थे, महंगाई पर बात हुई थी। आज उनको राहत के लिए प्यारी दीदी योजना 25 रुपया हर महीने 1 तारीख मिलने वाला है। इसके बारे में हम उनको बता रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से व्हाट विल बी द की इश्यूज दैट यू विल बी रेजिंग? इज इट अबाउट द गारंटीज टू द पीपल और इज इट द फेलियर्स ऑफ द आम आदमी पार्टी? देखिए, आप सवाल करने से पहले थोड़ा सा खांसी थी। कारण ये खांसी सबको है। क्यों? हवाएं जहरीली है, हवाएं जहरीली हो चुकी हैं।
आप देख लीजिएगा, सबसे पहला मुद्दा यही है कि यहाँ पर जो सड़कों की हालत है, धूल और मिट्टी उड़ने से लोगों को खांसी और वो हो रहा है। नशा यहाँ पर शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री यहाँ लोगों ने बढ़ते हुए देखी और महिला विधायक आतिशी मरलीना चुप रही। शराब पीने की उम्र कम कर दी क्योंकि ग्राहक नहीं मिल रहे थे, युवा पीढ़ी को बर्बादी की तरफ झोंका जा रहा था। आतिशी मरलीना महिला विधायक है, चुप रही। लोगों में गुस्सा है, ये देख लीजिए। उनका कैमरामैन को मैं निवेदन करूंगी, ये हालतें हैं सड़कों की और ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है। ये मुख्यमंत्री की विधानसभा एक आदर्श विधानसभा होनी चाहिए थी, दिल्ली को देखने आना चाहिए था और आज बदतर हालत है। विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, नशा अपना है, महंगाई से लोग परेशान है। महिलाओं से मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ और जरूर है यहाँ पर लोगों को रोजगार भी देने का मेरा पूरी कोशिश रही। तो हमने भी कुछ लोगों से बात की यहाँ पे, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है यहाँ पे, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ तक गारंटीज की बात है, आम आदमी पार्टी ने जो कुछ भी प्रॉमिस किया है हमें, वो हमें मिल रहा है। बिजली कम हो चुका है, पानी कम चुका है। तो आपको क्या लगता है कितना टफ होगा किसी भी पार्टी के लिए इस नैरेटिव को अपोज करने के लिए? देखिए, कांग्रेस एजेंडे पर लड़ रही है। 10 साल में भाजपा आम आदमी ने पूरी तरह से है आपसी लड़ाई में इसको जो है बर्बाद किया है ना। अब मुझे नहीं मालूम इतनी पुलिस छावनी बन गई, आप कैमरे को घुमाइएगा, मुझे मालूम नहीं, निहत्ते हैं, काम के लिए आए, सब ठीक है, मैं पूछती हूँ। इन्होंने आपकी टीम को बताया कि यहाँ पे आपको परमिशन नहीं है, वो हमने देखा अपने कैमरा में। नमस्कार। आपको क्या लगता है परमिशन क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कैंपेन करना है तो आपको परमिशन चाहिए, उनको परमिशन मैंने अभी नामांकन दाखिल नहीं किया और मैं पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर, हम सब बाकी लोग भी घूम रहे हैं, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, दूसरे उम्मीदवार भी घूम रहे हैं और जो नियम है उसका अब सख्ती से पालन किया जा रहा है। बाकायदा लोगों से मिल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। आप मिलिए, हम आपके साथी हैं यहाँ कैंपेन में। सो अलका लांबा स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, वी आर गोइंग टू बी वेटिंग हियर, शी इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल देयर, स्पीकिंग अबाउट द गारंटीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी एज वेल, अ लॉट ऑफ पुलिस डिप्लॉयमेंट दैट वी आर सीइंग एज वेल. For the Congress party, this is still looking like an uphill battle as they last won the constituency all the way back in 2008. But for most voters, this is still a straight fight only between the Aam Aadmi Party and the BJP. And most of them seem to have made up their minds. So if there's one place where you want to know the pulse of the people, especially Delhi, it is Lajpat Nagar. It's in the Kalkaji constituency and this area is always bustling. Whether it is if you're coming out to eat some food, then you have the very famous food outlets that are there. Whether it's for clothes, winter clothing, accessories, any of it, Lajpat Nagar is one of the places that people come to. What's the mood here? The elections picking up with the bustling area. They know about the problems that they have been facing, the changes that they want as well. So let's speak to the people here and find out what they think. आप दिल्ली से हैं, आपका यहाँ पे कैसा लग रहा है? इलेक्शन शुरू हो गया है, कैसा लगता है आपको माहौल? अच्छा लग रहा है अभी तो। क्या अच्छा लग रहा है? क्या क्या समस्याएं आपको क्या लगता है यहाँ पे लाजपत नगर में क्या समस्याएं हैं? आपके घर जहाँ पे है, मेन मुद्दे क्या रहेंगे आपके लिए? अरे तो क्या, अब ये तो मेरे को इतना पता है। बढ़िया चल रहा है जी, जो भी चल रहा है बस। महंगाई तो चल ही रही है सारी, जो महंगाई का तो पता ही है सबको। इतनी महंगाई चल रही है, बस इतना ही। मतलब महंगाई है मेन मुद्दा आपके लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, लेट्स स्पीक टू दोज हु आर वर्किंग हियर एज वेल। आपके लिए इलेक्शन में मेन मुद्दा क्या रहेगा? हम तो यहाँ के है नहीं, यूपी के, हमारा तो वोट ही नहीं पड़ता यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप यहाँ तो रहते होंगे, तो यहाँ की सरकार से जो भी बिजली उसका मिलता है आपको सब्सिडीज, उससे खुश हैं आप? वो सब ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। तो ये आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? हमें तो केजरीवाल भी अच्छा लग रहा है। केजरीवाल जी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बस अच्छा काम किया है। अच्छा, ओके, ऑलराइट। आप you're आई थिंक शॉपिंग हियर। अच्छा, सो आपको क्या लगता है कि दिल्ली इलेक्शन में मेन मुद्दे क्या रहेंगे? दिल्ली इलेक्शन में मेन मुद्दा रहेगा, एक तो देखो ये सड़कें, पूरी दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, सफाई का भी बहुत बुरा हाल है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए। आप यहाँ तो थोड़ा मार्केट में चलो, ये मार्केट वाले अपने कर लेते हैं, और जाके देखो और एरिया में दिल्ली की सड़कें देख लो, पूरी दिल्ली की, कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाओ, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है, सफाई का कोई नहीं। कूड़े का ढेर कहते थे हटा देंगे, वैसा के वैसे ही है। कुछ नहीं करा जी, कुछ नहीं करा। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ नहीं करा इसने। एक चीज तो बता दें, करा क्या है? तो वो उन्होंने अपने स्कीम्स की बात की है, जैसे कि बिजली या पानी के स्कीम्स के बारे में, जो महिलाओं के लिए भी अभी इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, इंट्रोड्यूस किया ना, दो ना। इंट्रोड्यूस तो पंजाब में भी करके आए थे, 3 साल से सरकार है।
वहां तो इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनकी पूरी सरकार है, सब कुछ इनके पास है, वहां दिया। तो ये तो एक छलावा है, कुछ नहीं देंगे। देना होता था 1 साल पहले, 2 साल, 10 साल से इनकी सरकार है, 11 साल से, अरे 5 साल पहले देना शुरू कर देते तो जनता विश्वास करती। कोई महिलाएं विश्वास नहीं कर रही इस पे, सबको पता है आएगा तो दूंगा। अब भाई पहले दे, जब विश्वास होगा लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को आना चाहिए यहाँ पे, या कौन सी पार्टी आएगी तो अच्छा काम होगा यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी अच्छा काम बिल्कुल अच्छा काम तो करेगी। केजरीवाल ने कहा है क्योंकि कि वो हमें बस सेंटर- टारगेट करते हैं, बस हमें गालियाँ देते हैं, काम नहीं करते हैं। उसको क्या कहेंगे? क्या जी, क्या केजरीवाल कहते हैं कि वो हमें गालियाँ देते हैं, कुछ काम नहीं करते। ये खुद कुछ काम नहीं करना चाहता है। मोदी जी का नाम ले लेके, सबका एलजी का नाम लेके बस इसने अपना पल्ला झाड़ना है कि अपना जो काम नहीं करा उसका ठीक करा, इसने एलजी पे फोड़ना है, मोदी जी फोड़ना है। इसने कुछ नहीं करा 11 साल में, सबको पता है इसने कुछ नहीं करा। और वो शराब घोटाला, इतने घोटाले वो तो सब आप जानते ही हो, सबको सब जनता को पता है। इस बार क्लीन स्वीप है इनका, ये खुद हारेगा नई दिल्ली से। As brand Modi and brand Kejriwal clash once again, the Kalkaji battle will be one of the most keenly watched contests. Can the Chief Minister defend her constituency? So while speaking to the people from the constituency, the one thing that we have taken away from here is that while many, especially from the economically weaker section, are talking about how these guarantees or the schemes and subsidies have helped them in their daily life, there are many, especially from the middle class, who are also talking about the burden that it brings on the taxpayers. So on one side, while they welcome these schemes by the Aam Aadmi Party, the other side is people who are saying enough. What we want is development across Delhi in the national capital. So those were the two sides of it. We will be back again tomorrow at the same time to try and decode what is there in Delhi's Dil. For now, with video journalists Himanshu Verma and Gopal Dutt, this is Pratibha signing off.